Well, welcome to the third class of narration change. In this class, we are going to study how to convert the direct speech sentences into indirect speech sentences if the given sentences are what interrogative sentence. So, in case of interrogative sentences, how to do the narration change, we are going to learn that. Okay. Second type of sentence is interrogative sentence. Yesterday we had learned how to convert the assertive sentences. Now we are going to learn the process how to convert the interrogative sentences from direct speech to indirect speech. Okay. And before doing that, we have to understand how we can identify the interrogative sentences. And it is very easy. Interrogative sentences can be identified only by seeing at the end of the sentence, seeing this mark, means the question mark or the mark of interrogation. If at the end of any sentence you get to see the question mark, means obviously that sentence is interrogative sentence. Is it clear? That interrogative sentence may start with an auxiliary verb, means helping verb, do, does, did, was, is, am, are, were, has, have, had, shall be, will be, like this. With any auxiliary verb, the question sentence can be started, or with a WH word. WH word means WH question word. Who, what, whom, how, why, when, where, how much, how many, how long. Okay, like this. Either the sentence starts with a WH question word or with any auxiliary verb. And more specifically, at the end of the sentence, there must be a question mark. This is the short identification mark for an interrogative sentence. Is it clear? Clear? भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे? क्लियर ना? ओके. अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं. एक होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, जिसका आंसर ये या तो यस कह के या तो नो कह के दिया जा सकता है, जिसकी शुरुआत होती है किससे बेटा? कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे इज एम आर, वॉज वो, हैज हैव हैड, शैल हैव विल हैव, या तो शैल बी विल बी, या तो डू डज डिड, इन सब चीजों से. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर क्योंकि यस या नो कह के दिया जा सकता है, दैट्स व्हाई इन क्वेश्चन टाइप का नाम होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस. और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन सेंटेंस को कहते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन. ठीक है. ये दोनों टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों पैटर्न याद रखने हैं, ये आगे काम आएंगे. देखो, इस सेंटेंस की शुरुआत हो रखी है व्हेन, किससे? एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से. हेलो, ये इसकी स्टार्ट हो रखे हैं डब्ल्यू एच वर्ड से. हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे. अब ये डब्ल्यू होने के बावजूद भी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन पैटर्न में नहीं है, गड़बड़ी नहीं करनी. तो ये हो गया आपका यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, पर ये तीनों हो गए डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस. डू, डिड, ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रखा है, ये भी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन. बात समझ में आई? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन जो शुरू होता है उस क्वेश्चन पैटर्न को बोला जाता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन. और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले उसको बोला जाता है ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है.
अब क्वेश्चन सेंटेंस को किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करें, उसके लिए कुछ रूल्स है, सिंपल है, ये लिख लीजिए। एज इट इज। देखिए बेटा, सो इन केस ऑफ द नरेशन चेंज ऑफ interrogative sentence, we have to follow some special rules. What are the rules? If the reporting verb is say, or says, or said, or say to, or says to, or said to, in every case, we have to convert all those verbs into question words, and according to the given tense, we have to change the format of the question words. For the simple present, say or says, say will be converted into ask. If there is says, it will be asked. If there is said or said to, it will be asked. Or inquire, then S form inquires of, inquire of, or S form inquired of, inquires of, or ed form, past form, inquired of. If it is say, then want to know. If it is says or says to or say to, then is in case of says to or says, it is wants to know. In case of said or said to, it will be wanted to know. So alternatively, you can use ask or you can use inquire of, किसी बारे में जानना चाहता है, inquire of, want to know, हाँ, जानना चाहता है, मतलब जिज्ञासा है मन में, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी यूज करोगे, से को से में नहीं रखना है, ये ध्यान रहे। कोई सा भी लिख सकते हो, पर मतलब परिस्थिति, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जिसके लिए ज्यादा सुटेबल रहे उस हिसाब से। सिंपल वे में ओनली आस्क, थोड़ा सा रिफाइंड वे में इंक्वायर ऑफ, और नॉर्मल वे में कोई जानना चाहा तो टू नो, परिस्थिति के अकॉर्डिंग।
कोमा हटा के, बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात, कोमा हटा के पहले सभी सेंटेंस में क्या लग रहा था बेटा? दैट लग रहा था। कभी भी इंटरोगेटिव में भूले से भी किसी भी हालत में दैट नहीं सोचना, कोमा हटा के दैट नहीं आएगा, इंटरोगेटिव के केस में नहीं आएगा, बाकी केस में आएगा। वहां पे इफ या वेदर इन दोनों में से कोई सा भी एक लाओगे। अगर WH से शुरू ना हो रखी हो तो, क्या बोला? सेंटेंस की शुरुआत अगर WH से ना हो रखी हो तो, सेंटेंस की शुरुआत अगर WH से हो रखी हो, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की, तो WH से हो जाएगा। इफ वेदर भी बिल्कुल लगाना नहीं है। मतलब मानो हु, विच, व्हाट, वेदर, व्हेन, व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसे किसी WH से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत है तो उसी WH वर्ड से ही उसकी कंटिन्यूएशन हो जाएगा। एक्स्ट्रा यहां तक कि इफ या वेदर भी लाना नहीं पड़ेगा। इफ वेदर कब लाया जाता है? जब इसकी स्टार्टिंग कोई ऑक्सिलरी वर्ब से है, जैसे अभी देखे थे ना, इन सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? ऑक्सिलरी वर्ब से। इन केस में इफ या तो वेदर लाना पड़ेगा, पर इन केस में इनमें WH लाना, WH तो है ही, इसलिए इफ या वेदर नहीं लाना पड़ेगा। WH के केस में WH से ही कंटिन्यू होता जाएगा, और WH जिसमें नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग हो रखे, उसी में ही इफ या तो वेदर दोनों में से कोई सा भी एक लगाना पड़ेगा। बोलोगे कौन सा किस केस में सही है? ऐसे कोई रूल नहीं है। इफ का जो मतलब है वेदर का भी मतलब सेम भी है। ऐसा नहीं है इफ 2 लेटर का शब्द है तो उसका वेटेज शायद कम है, और वेदर जो है वो 7 लेटर का है तो उसका ज्यादा है वेट, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का बराबर का मतलब है ना। ठीक है। अब क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड पे है, ये तो आंखें रगड़ रगड़ के आंखें लाल कर दी इसने। देख ले, अब तो देख ले, क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आ जाएगा बेटा? फुल स्टॉप आ जाएगा। अब हर हाल में ये चीज नहीं भूलनी बेटा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब, और लास्ट ऑफ ऑल फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप। बात आई समझ में? पहले सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन फाइनाइट वर्ब, एंड लास्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लगा के मेन वर्ब, फुल स्टॉप। सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यही फॉर्मेट काम आता है, यहाँ पे भी वही बात है। तो चाहे इफ वेदर लगाओ, चाहे WH वर्ड लगाओ, ध्यान रहे उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। इफ या तो वेदर लगाए या WH वर्ड से स्टार्ट करे, उसके बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। भूले से भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले नहीं लाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब पहले लाने से क्या होता है? वही इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ही तय रहेगा। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रह जाएगा तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। नियम क्या है? सभी सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में किस में कन्वर्ट करना होता है? SVO फॉर्मेट में, मतलब असर्टिव में। वो बात जैसे पूरी नहीं होगी, इसलिए गलत हो जाएगा। समझ गए? चलो, आई सेड टू हर, हैव यू, यहाँ पे कोटेशन ऐसे होगा, हैव यू, ऐसे, हैव यू ब्रॉट माई बुक। मैंने उससे पूछा, किसी लड़की से पूछा, मैंने किसी लड़की से पूछा, क्या तुम मेरी बुक लाई हो? अच्छा, मैंने किसी लड़की से पूछा, क्या वह मेरी बुक लाई थी? अच्छा, ये सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बेटा मौलिक, ध्यान से सीधा बैठो। कन्वर्ट हुआ? हर का तो हर ही रह जाएगा बेटा। कोमा हटा के क्या बैठेगा? भूले से भी दैट नहीं आएगा, क्वेश्चन सेंटेंस में दैट नहीं आता। ठीक है। अब ये स्टार्टिंग वर्ड क्या है? WH वर्ड है? WH क्वेश्चन वर्ड है? स्टार्टिंग वर्ड, ये स्टार्टिंग वर्ड WH का क्वेश्चन वर्ड है क्या? नहीं, पूछ रहा हूँ इससे।
अरे रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का पहला शब्द ये WH वर्ड है क्या? नहीं ना, ये क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बोल तो रहा हूँ, कई कई बार बोल दिया है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की शुरुआत हो रखी होती है, तो इन दैट केस हमें इफ या तो वेदर लाना पड़ता है। तो कॉमा हटा के क्या लाया गया बेटा? इफ। यहाँ पे वेदर भी लगा सकते थे। आई आस्क्ड हर वेदर शी, अब टेंस कौन सा है? हैव ब्रॉट टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में कन्वर्ट होएगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो ये चेंज होगा, होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट। आई आस्क्ड हर इफ शी, अभी ये लड़की से पूछा गया इसलिए शी, इफ शी हैड ब्रॉट, अब यहाँ पे मेरी किताब, ये मैं ही हूं ना स्पीकर, तो ये मेरी किताब तो मेरी किताब ही रह जाएगी। आई आस्क्ड हर इफ शी हैड ब्रॉट माई बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? बोलिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो हाँ बोलिए। अच्छा बेटा, नियम है कि जितने भी नरेशन चेंज की टाइप है, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, किसी भी सेंटेंस को, जब किसी भी टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर किया जाता है, तो उसका फॉर्मेट चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इनडायरेक्ट में आकर उसको असर्टिव में ही बदलना है। असर्टिव का पैटर्न होता है पहले सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी, एंड देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये पैटर्न करना ही करना है, ये सभी सेंटेंस के लिए ये नियम लागू है। हाँ, इसीलिए असर्टिव के एंड पे क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क क्या रहता है? फुल स्टॉप रहता है। उसमें तो क्वेश्चन मार्क रहता नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव में रहता है, और इंटरोगेटिव में तो रखना है ही नहीं, रखना तो किस में है? उसमें उसको बदलना है असर्टिव में, इसीलिए फुल स्टॉप बेटा। हाँ, इफ वेदर विल नॉट कम, WH से स्टार्ट हो रखे हैं तो WH से अब स्टार्ट कंटिन्यू करोगे ना, टेंस विल बी चेंज। रहीम सेड टू द गर्ल, रहीम ने लड़की से बोला, वाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रही हो? रहीम, ये सेड टू किस में बदल जाएगा? किस लिए बदला? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस किस में है? क्वेश्चन पैटर्न में है, इसलिए बदला, ये ध्यान रखना है। रहीम आस्ट, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए आस्ट हो गया। आस्ट द गर्ल, कॉमा, एफ, आस्ट, क्या किसने बोला? अस्कड, तो बोल पा रहा है अस्कड? आस्ट, यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोगों ने ही एक बोलते बोलते सिस्टम बनाया है कि जहां पे जिस लेटर का उच्चारण करना आगे के उच्चारण के खातिर संभव नहीं हो रहा है ठीक से, तो उसको उड़ा दो। अंग्रेजों ने बोला एस की आस्क, एस के आस्क, पहले स फिर क, ऐसे ध्वनि आनी चाहिए, एस के आस्क, लेकिन उसके बाद ड, क के बाद ड बोलना हमारी जुबान दुनिया की किसी भी जगह के इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आस्क्ड ऐसे उन्होंने मना कर रखा, उन्होंने बोला के को उड़ा दो, आस्क, और ड भी नहीं, सीधा ट कर लो। तो एक नियम बताऊंगा किसी एक दिन। बेटा ये लैंग्वेज किनकी है? लैंग्वेज किनकी है? लैंग उनकी है ना। अब जैसे कि कल ही तो बोला था, हिंदी में कोई भूल भाल बोले, उल्टे पुल्टे बोले, तो तुम करेक्शन करने जाओगे ना, तुम बोलोगे अरे हमारी भाषा है, हमें हमसे बेहतर तू जानता है क्या, मैं तुझे सिखाता हूँ, ऐसे हिंदी बोली जाती है, तुम बोलोगे ना। कोई बोले हिंदी, आप बोलेगे, कोई बोलेगा कि ऐसे हिंदी बोला जाता है, तो बोला हिंदी बोला नहीं जाता है, हिंदी बोली जाती है। बेवकूफ कहीं का, तुम ऐसे करेक्शन करोगे ना, तो वैसे करेक्शन ब्रिटिश लोग भी करेंगे। आती नहीं है, समझ में आ जाती है, लगभग 90% करीब करीब।
हाँ? एक एक शब्द का मतलब पूछोगे तो पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्यालाप वार्तालाप में। ये चबूतरा कहते हैं उसको, चौतरा, चबूतरा कहते हैं। हाँ, देखता हूँ। इधर देख, देख, ये देख बेटा, इधर 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 देख, इधर देख, देख ले बेटा, इधर देख ले बेटा। रहीम आस्क्ड द गर्ल। अब देख, ये कोमा के बाद हम क्या बिठाएंगे क्या नहीं बिठाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? ये फर्स्ट वर्ड के ऊपर डिपेंड हो रहा है। बेटा अभी भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम लोग ठीक से। ओ भाई इधर देख, ये कोमा हटा के क्या आएगा नहीं आएगा, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? रिपोर्टेड सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस का पहला वर्ड के ऊपर डिपेंड हो रहा है। ये अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव मतलब कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से है तो ई फर्दर लगाओगे। ये अगर डब्ल्यू एच है तो ई फर्दर नहीं लगाओगे, सीधा डब्ल्यू एच से ही कंटिन्यू कर दोगे और कोमा को अपने आप ही हटा दो, है ना। देखो डब्ल्यू एच वाई वही आ गया। अब ये आर शाउटिंग टेंस कौन सा है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में कन्वर्ट होएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो सीधा तो बैठ जा बेटा। ना ना, पास्ट कंटिन्यूअस में सही है। प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट सेम सब टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। कोई भी प्रेजेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लाइक दिस। ओके, ठीक है बेटा। इधर देखो, अब ये कौन रो रहा था, ये रो रही थी, इसने सवाल उठाया। वह लड़की क्यों रो रही थी? हाँ, वह लड़की, ओ सॉरी, शाउटिंग, कौन रो रहा था, सॉरी चिल्ला रहा था या चिल्ला रही थी, ये जो पूछा गया तो वह, वो लड़की, तो शी, इसलिए शी। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? शी के साथ वॉज शाउटिंग हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो गया। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। शिक्षक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आते बोलता हूँ। द टीचर सेड टू का मी। अब डब्ल्यू एच क्या है बेटा? डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग है, तो हम इफ वेदर लगाएंगे नहीं, कॉमा हटा के सीधा वही लगा देंगे डब्ल्यू एच। हाँ, व्हाट। अब देख सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये माई नेम, मेरा नाम सब्जेक्ट। मैंने क्या बोला? डब्ल्यू एच लिखो या तो इफ वेदर लिखो। क्या बोला? ये कॉमा की जगह पे डब्ल्यू एच लिखो या तो इफ वेदर लिखो। उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हो तो कौन सा पैटर्न रह जाएगा? क्वेश्चन पैटर्न ही रह जाएगा, जबकि क्वेश्चन पैटर्न रखना ही नहीं है, एसआईटी पैटर्न में करना है। इसीलिए वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाना है? माय नेम। अब इज को कहाँ भेजोगे? ऑब्वियसली लास्ट में ही तो भेजोगे, है ना। और फुल स्टॉप। भूले से भी व्हाट वाज माय नेम लिखोगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने डब्ल्यू एच के तुरंत बाद किसको नहीं बिठाया? सब्जेक्ट को नहीं बिठाया। किसको बिठा दिए? ऑक्सिलरी वर्ब को बिठा दिए। ऑक्सिलरी वर्ब को बिठाने का मतलब है क्वेश्चन पैटर्न रह गया। समझ गए? पहले डब्ल्यू एच हो या इफ हो, इधर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाओ, फिर जाके ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो कुछ लगाने का मर्जी बाद में लगा। फिर से बोल रहा हूं, एक ही बात पे हैमरिंग कर रहा हूं बेटा, चाहे डब्ल्यू एच वर्ड या इफ वेदर, उसके तुरंत बाद क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट। बाकी सब तुम बाद में सोचो, ठीक है। नो, सिंपल प्रेजेंट। ही सेड टू मी हैव यू रिसीव्ड द लेटर। उसने मेरे से पूछा क्या तुम्हें कोई चिट्ठी मिली है? सेड टू का क्या बना बेटा? आस्क्ड। अब यहाँ पे ये जो कोमा की जगह पे मैं क्या बिठाऊंगा, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड से। पहला वर्ड क्या है? हैव। हैव कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या बैठेगा? इफ या तो इधर में से एक बैठेगा।
यहाँ पे वेदर बिठा दो या तो इफ बिठा दो। अब किससे पूछा? मेरे से पूछा। इफ आई हैव रिसीव प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। इफ आई के बाद सब्जेक्ट तो बैठ गया आई। आई के बाद तुम ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब जो बिठाना बिठाओ। ऑक्सिलरी पहले बैठता है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट तो ये आई हो गया। इसके बाद हैड ऑक्सिलरी वर्ब, रिसीव्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। बात समझ में आई? कर पाओगे? हम्म। अभी तो 15 करो, उसके बाद चेक करते हैं। Don't copy the question sentences directly, just answer them. Hmm? We don't have to copy the sentences. You just directly go for answering. फटाफट कर लो। बेटा अभी तो रूल सबने पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है। सिर्फ किस में आता है? नॉर्मल एसर्टिव में आता है ना। अभी तो तुमने क्या पढ़ा है? इंटरोगेटिव के लिए तो आस्ट आता है। नहीं आता है कभी, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आता है। यस बेटा। फूड कहाँ से आया? कैन है कि विल के बदले में क्या होता है? वुड होता है। हम्म। अरे भाई तुम कहाँ रहते हो जब पढ़ाता हूँ? किसने किससे पूछा? कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करके मनमर्जी कर रहा है। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा। हाँ, अब ये हो जाएगा पूछा। जस्ट मी। अभी ये यू कौन है? यू तो मैं हूँ। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या आता है? मैं के लिए सब्जेक्ट में आता है या आई आता है? तो इफ आई वुड बोरो द फोन, आई पहले आएगा, वुड बाद में आएगा। बार बार बोल तो रहा हूँ। इफ क्यों हुआ? इफ या वेदर क्यों होगा? क्योंकि डब्ल्यू वर्ड से तो फिर बात से शुरू होगा।
नहीं, थर्ड दे because they तो पहले यहाँ बैठा था। तू कहाँ बैठा था? तो ठीक है, तब क्या होगा? तू बैठ, तू कर। नहीं, आप आराम से बैठे करो भाई। मॉडल ऑक्सिलरी नॉर्मली टेंस नहीं समझाता, शुड मॉडल ऑक्सिलरी होता। मैंने पहले ही बोला, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, शुड वुड कुड इन केस में कोई चेंज नहीं। शुड वुड कुड नहीं, नहीं, शुड वुड कुड रह जाएगा। बाकियों में प्रोनाउन में चेंज होना है, एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम, वो उसमें करो। बेटा आप अपने आप से पूछो,
द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, हिंदी समझो ना। हैव यू सीन, ये यू कौन है? हम है ना। हाँ थर्ड में भी आना चाहिए ना, हमसे पूछा दे, हमसे बोला कि वे लोग, तो वे लोग के हम लोग थोड़ी ना हो रहे हैं। पहले 10 ही करने हैं ना, पहले 15 करने हैं। हाँ कोशिश करके आराम से हो जाएगा, और उसके बाद और भी 10-15 हो जाएंगे। जल्दी कर। अच्छा ये भी तो करेंगे। मैं करूंगा ना, वो मेरी सिर दर्द है, वैसे सिर दर्द हो रहा है ना। ठीक है बच्चा, कर रहे, काउंट कर ले पहले। तो 50 सेंटेंस का हैव का हैड तो नहीं होगा ना, नहीं क्यों अगर 5th सेंटेंस में हैव का हैड तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में जब है तो प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और पास्ट परफेक्ट होता क्या, हैड प्लस मिल भी था तो हैड हो गई, हैड ही होगा। He asked his sister if Vikas is running in the morning. इज रनिंग कैसे हो जाएगा? Vikas is running in the morning. क्या बोल रहे हो? If Vikas running in the morning. वॉज रनिंग पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है? हाँ फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर लगाओ। करो करो योगित, जल्दी करो। आपकी कॉपी से पहले चेक करूंगा, 25% इसकी कॉपी से चेक करूंगा, 50% आपकी कॉपी से चेक करूंगा, 25% मौलिक की कॉपी से चेक करूंगा। पहले से अनाउंस कर दिया, वो तो मैं, वो मेरी मर्जी है। कह दिया 3 की कॉपी चेक करूंगा आज, मतलब आंसर दिखाने से पहले, आंसर दिखाने से पहले फिर जाकर आंसर। टॉपर टूपर कुछ नहीं है, मेरी मर्जी, मैं चेक करूँ।